Happy morning to all the dreamers. Yeah, for any great thing, dream is a beginning. And very nice to see that. Many of you are seeing a dream to be a great business legend, probably like Ambani, probably like Tata, Bill Gates, Zuckerberg, or lead an international company the way Sundar Pichai, the way Indrani, they are leading as a CEO of the companies through a good job. So nice. I am today in the company of so many dreamers. So let us start the things with a beautiful story you all will love about. This is a story about a boy who has taken a birth in Washington in 1955, a birth in a higher middle class family, probably the same way you are here, we are here. Same kind of family. A family was having a little exposure into business. In that kind of family he has taken birth. Parents ensured from the beginning that if the attitudes are set right, if the skills are set right, if they get a lot of inputs from childhood, then only at the adult age they will be great humans, they will be great success. So from childhood, in all the three siblings, they have encouraged competitive spirit, a spirit कि जो भी करेगा ना मैं कमाल का करेगा, वो वाला स्पिरिट. फालतू फालतू कुछ नहीं करेगा मैं, वो वाला स्पिरिट. एक स्पिरिट जिसमें स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस था. लेट अस ट्राई, मे नॉट बी, not every time you will be number one, but try for number one. And that was the strive for excellence, that was the competitive spirit. और बचपन से वो चीजें उन लोगों के बीच पेरेंट्स ने इनकलकलेट करना चालू किया था. And he was a voracious reader and used to go with mother for business meetings also. Why I'm telling all these things? Just analyze. Today, he is a very great man. If we see his childhood, he was by attitude set right by the parents. By inputs, by knowledge, he was a voracious reader. जब कोई बंदा thousands of books read करता है तो उसका input imagine करो ना कितना higher रहेगा. और जब कोई भी, we are like a computer, we are like a machine when it comes to our mind. We call it as a science of mind. The more the input in the mind, the more will be output one day. So he was a voracious reader, which helped him for his great fortune. He used to go with mother for business meetings. What he used to do, what parents used to do, used to give him a lot of exposure, a lot of experiences. In childhood also, attending business meetings started inculcating the business spirit within him. So in 1970, at the age of 15 only, he has created and sold an IT utility worth $20,000. At the age of 11, 12, just before that, he lost interest in studies. Probably the way as India we do understand today that our education systems are basically bookish. Yeah, they want to revive it, will take some time, but they are majorly bookish. Many of the courses. Same thing, he realized at the age of 11, 12 only, he started losing interest in studies. And parents got a little bit disturbed. But he started focusing on business. Only at the age of 15, creating a IT utility and selling it was a great thing for him. But again, a small, probably we can say, as a mistake or a diversion, at the age of 18 in 1973, though there was an entrepreneur within, just because of the pressure of other people, just by listening to his friends, he has taken a decision to become a law student. हम भी वैसे ही करते हैं ना, कैसे लेते हैं करियर का डिसीजन. बचपन से कोई ना कोई बताता है ये कोर्स बहुत भारी है, तूने एमबीए होना चाहिए, तूने सीएस होना चाहिए, तूने डॉक्टर होना चाहिए. पता भी नहीं रहता है यार क्या है सीए में, क्या है लॉन्ग फॉर्म. काफी बार काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है. दे डोंट नो होने के बाद हम क्या करेंगे. एंड प्रोबेबली दैट वाज द सिचुएशन विद मी आल्सो, नॉट ओनली यू. 10th में डिसाइड किया था मैंने सीए बन जाऊंगा, बना भी. एट द एज ऑफ 21 आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट वो होने के बाद, पास होने के बाद समझा कि नहीं, ये फील्ड अलग है. बचपन में कभी सोचा ही नहीं था हाउ टू डिजाइन द करियर. प्रोबेबली द सेम थिंग विद दिस गाय. 1973 he become a law student और 2 साल में उसे भी ध्यान में आया
this course is not for me, this course is not going to create me an entrepreneur or businessman, क्योंकि इस कोर्स में ना ही मार्केटिंग है, ना ही एचआर है, ना ही फाइनेंस है. And it happens with many of us. And within 2 years, that was a great decision. He dropped out and he started with the great company, Microsoft. At the age of 20, 1955 born, 1975, he has started with Microsoft. At the age of 20, he entered into a business. 2 years, he lost into law education. And rest is the history that you know. One of the richest man today on this planet. We are here with this Bill Gates. Yes. Now, I just want to tell you, if he started at the age of 20, he entered the business at the age of 20 and could do so humongous success, could achieve that humongous success, just believe. You who is having very great exposure, I'm saying, because in those times, before 1975, in his childhood, there was no internet, there was no facilities like this online education, online inspiration that you are taking from me also now. Despite of all those unavailabilities, he could do so great. Today you are just around 17, 18, and you have taken a decision to come into business. Yes, that's why you are here today in this seminar, in this webinar, because you have taken a decision to be a part of BBA, to be a part of business. You have that dream to become legend like them. And you are just 17, 18 probably, just completed 12th. If you start at this, just believe you can become better than him also. Subject to you need some skills. क्या था उसके अंदर जिसकी वजह से वो इतना ग्रेट बन पाया? वही तो सब हमें लेना है अपने अंदर. कैसे क्या देखते हैं अभी. But just to say again, your decision to come in BBA business is the best decision. So let's go ahead. Why, sir, it is the best decision? Why BBA or business field you are talking is best? Because we have not listened. हाँ फैक्ट है, हम नहीं सुनते ये सब चीजें. क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, जब बच्चा 10th में, इफ ही इज अ टॉप क्लास स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, गेटिंग गुड मार्क्स, तो पहले कहना चालू हो जाता है, कौन सा साइंस साइड लो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, टेल मी, आंसर मी थ्रू चैट. क्या कहते हैं नॉर्मली टीचर्स? अरे ये बच्चा बहुत इंटेलेक्ट है, तूने इस साइड को जाना चाहिए. What is the normal mentality? 90-95% I'm talking about. Okay, not 100. So chat, I'm waiting for your charts. What does our, yes, Mukund is talking about science, Chaitanya was talking about science. Okay, and that's the truth. Many of our parents, our teachers, they talk, my child is so intelligent, ये तो साइंस में जाएगा, ये तो साइंस में ग्रेट होगा. अरे यार, साइंस में जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? दो ही ऑप्शन सामने रखते हैं हमारे, दो ही ऑप्शन. साइंस में जाता है तो yes, Atharva, some things are changing, Atharva, as you said, commerce, as I said, 90% and 5%. Okay, Suryakant saying deep science. Okay, tell me, when we go to science, there are again only two courses they talk about. हाँ, एक तो इंजीनियरिंग है, चैतन्य सेठ, और दूसरा क्या है? साइंस में जाना है तो भाई मेरा बच्चा तो क्या बनना चाहिए? एक तो इंजीनियर बनना चाहिए, नहीं तो दूसरा. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, दैट इज चैट. नहीं तो दूसरा बनना चाहिए डॉक्टर. इंजीनियर बनो, नहीं तो डॉक्टर बनो. और कोई जैसे भावेश बोल रहा है कि साइंस में जाना है मुझे, कोई साइंस सॉरी कॉमर्स डिसाइड कर रहा है, तो कॉमर्स में क्या ऑप्शन रखा जाता है फिर हमारे सामने? कॉमर्स में क्या रखा जाता है? इस अबाउट कॉमर्स में जा रहे हैं ना, तो सीए सीएसई बनना है, सीए सीएसई बनना है. अरे कितने पेरेंट्स और कितने प्रोफेसर्स, आई हैव सीन सो मेनी प्रोफेसर्स टॉकिंग इन कॉलेज, इस सर हमारे कॉलेज से 20 बच्चे सीए होने चाहिए, 10 बच्चे सीए होने चाहिए, हमारे कॉलेज के इंजीनियर बनने चाहिए, हमारे कॉलेज से ना बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए. लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कोई प्रोफेसर को कहते हुए कि मेरे कॉलेज से 10 टाटा पैदा होने चाहिए, मेरे कॉलेज से 20 बिरला, 5 बिल गेट्स पैदा होना चाहिए, कोई तो मेरे यहाँ से एक जुकरबर्ग बन जाए और सिर्फ मेरे कॉलेज का नाम ना रोशन करे, मेरे करोड़ों इंडियंस को जॉब और करियर की अपॉर्चुनिटीज दे. कहता है कोई? हैव यू लिसन्ड दिस थिंग टिल योर 10th 12th? प्लीज राइट YRN
यस और नो? हैव यू लिसन्ड सेइंग कि यार मेरे कॉलेज से इतने बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, इतने टाटास बनने चाहिए, इतने बिल गेट्स बनने चाहिए? हैव यू लिसन दिस थिंग? फॉर मेनी ऑफ देम द आंसर इज नो, नेवर. और अगर जो चीज सिखा ही नहीं है कभी, उसका ड्रीम कौन कैसे लेके चलेगा? इसलिए आई सी रियली से यू हैव चूजन दिस फील्ड ऑफ बीबी एंड बिजनेसमैन. रियली कांग्रेचुलेशंस टू यू. जस्ट वी विल गो थ्रू ये फील्ड सबसे बेस्ट क्यों है. देखो ना, कोई भी कोर्स ले लो. If you become a doctor, you have only one choice in life, that you can become a doctor as a professional, or you can go into job. If you choose a field of engineer, say for example mechanical engineering, you can go into mechanical sector as a job, as a professional. सर कोई लोग है ना बिजनेस भी चालू करते हैं इंजीनियर बनने के बाद. हाँ, चालू करते हैं यार, बिना सीखे भी चालू करने वाले लोग हैं. लेकिन फिर उस एजुकेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ना डॉक्टर ना इंजीनियरिंग में मार्केटिंग सिखाया जाता है, ना फिनांस सिखाया जाता है, ना एचआर सिखाया जाता है. यानी उस चीज का आई एम सेइंग उस एजुकेशन का बेनिफिट नहीं हुआ फिर उस करियर में. उस एजुकेशन के ऊपर उसका बेनिफिट लेना है तो व्हाट यू कैन डू इज अ जॉब और अ प्रोफेशन. बट इफ यू कम इनटू बिजनेस, यू कैन डू एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ 4 करियर्स. कौन से 4 करियर्स है? जॉब, प्रोफेशन जिसमें खुद के स्किल से लेके लोग अर्निंग्स करते हैं, जैसे कि गाइडेंस देना, कंसल्टेंसी देना, जैसे कि सीएस है, इंजीनियर्स है, आर्टिस्ट है, वो भी एक प्रोफेशन है. स्पोर्ट्स पीपल है, बिजनेस में बिजनेस सीखने के बाद दूसरे को बिजनेस कंसल्टेंसी देना, ये भी प्रोफेशन है. सो यू कैन डू एनी 4 टाइप ऑफ करियर्स. यू कैन एंटर इनटू अ जॉब व्हेन यू लर्न बिजनेस. इनिशियल जॉब कर लो, फिर बिजनेस में उतर लो शायद. You can enter into profession. You can do any number of businesses. दुनिया के करोड़ों करोड़ों टाइप के बिजनेसेस कितने भी इन्वेंट करो ना आप, आपके हाथ में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, जो कि कोई कोर्स में नहीं है, ना सीएस में, ना इंजीनियरिंग में, ना डॉक्टर में. दिस सेगमेंट हैज मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू. You can become whatever you want through this segment. कौन सी millions of opportunities? Yeah, if you want to start a hospital, you need not be a doctor here. You can be a businessman and you can start a hospital by recruiting 50, 10, 200 doctors under you, and you can start a hospital. See, na? Mangeshkar Hospital in Pune, Reliance Hospital, Birla Hospital. These all are started by businessmen, and they can do that. You can start a manufacturing company. You can start hotel chain. You can do online businesses. A number of things. Greatest creativities might be some portals like Uber, like Udemy, like Unacademy. So many things, so many creativities possible. Never the world will exhaust for you here. Never the world of opportunities will finish for you. And that is the field you have selected, a field of millions of opportunities. This is the field where richest possibility is there. Richest possible. See ना, if you see, दुनिया भर के 10,000 सबसे रिच लोग ले लो और बताओ मुझे चार्टिंग में इसमें से मेजॉरिटी जॉब वाले रहेंगे, प्रोफेशन वाले या बिजनेस वाले? जे, पी और बी. सी, दुनिया के 10,000 टॉप रिचेस्ट लोग, इसमें से मेजॉरिटी बिजनेसमैन रहेंगे, जॉब वाले रहेंगे या प्रोफेशनल रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? Probably 99% of them. Yeah, Bhavesh, Niranjan, all are talking about Ashish. Oh, आशीष, एक नहीं, आधा % भी लोग जॉब से नहीं है. 99.9% प्रोबेबली दे आर फ्रॉम बिजनेस सेगमेंट. ये सेगमेंट है जिसमें आप रिचेस्ट पॉसिबल हो सकते हो, जिसमें रिस्क देखते हैं हम. काफी लोग ये कहते हैं मुझे बिजनेस में रिस्क है ज्यादा, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है इसमें. देखिए, आज कोरोना की वजह से इतने लोगों के जॉब चले गए हैं. जॉब में भी तो रिस्क है, लेकिन सर जॉब इजीली नहीं जाता. नहीं, आप उल्टा सोच रहे हो. जॉब किसके अंडर करने पड़ते हैं? बिजनेसमैन के अंडर. सपोज कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपको ध्यान में आ रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ सी सिचुएशंस लाइक दिस कोरोना, बिजनेस हैम्पर हो रहा है. तो पहले आपके एम्प्लॉय को निकालोगे या पहले आप खुद निकल जाओगे बिजनेस से? किसको निकालोगे, एम्प्लॉय या सेल्फ? तो फिर रिस्क किसको ज्यादा है, एम्प्लॉय को या बिजनेसमैन को? सबसे पहला अगर झटका बैठता है तो वो
किसे? आई एम लुकिंग फॉर योर चार्ट्स। या संस्कृति सेइंग एम्प्लॉइज, या सबसे पहला झटका बैठता है एम्प्लॉय को। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एनालाइज वन थिंग। अगर एक जॉब है ना आज, तो 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं एक जॉब के लिए, कम से कम 100 पकड़ लेते, 100 में से एक को जॉब मिलेगा, यानी फेल्यूर 99%। सीए करने जाते हो तो 100 में से 3 लोग सिर्फ पास होते हैं, यानी फेल्यूर 97%, सक्सेस 3%। एमपीएससी यूपीएससी करने जाते हो तो लाखों में से एक पास होता है, फेल्यूर 99.99%। बिजनेस में अगर अच्छे तरह से स्किल्स लेके जाओगे, अच्छे तरह से सीख के जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है सक्सेस की? कितनी पॉसिबिलिटी है? या राइट डाउन इन चार्ट, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस? आई एम वेटिंग। अगर आप जैसा बंदा अच्छे तरह की स्किल ले ले, प्रैक्टिकली सीखे, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखे और बिजनेस में उतरे, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस? प्रथम इज सेइंग 99.99%। या उसैद, वेरी ट्रू। आशीष 100%। नेल्सन, या somebody saying 75%। या सो अगर देखो तो दुनिया के पूरे सभी करियर्स में, आज इंजीनियरिंग में भी देखो ना यार, कितने बच्चे जॉबलेस है, लेकिन बिजनेस ये सेगमेंट है ना, आप यहाँ पे कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ गया यार, आप सैनिटाइजर का बिजनेस चालू कर सकते हो, आप मास्क का बिजनेस चालू कर सकते हो, एंड यू कैन सर्वाइव द फैंटास्टिक वे। सो लोवेस्ट रिस्क एरिया, हाईएस्ट सोशल रिस्पेक्ट, बड़े बड़े प्रोग्राम, सोसाइटी के प्रोग्राम्स, फन फेयर जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम जो टीवी के ऊपर होते हैं, स्टेज पे ना बिजनेस मनाते हैं, तो एक बार सक्सेस हो जाते हो ना बिजनेसमैन, तो उसके लिए सोशल रिस्पेक्ट सबसे हाई है। एंड द लास्ट थिंग इज नेशनल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। जॉब चाहोगे ना, तो आप एक का लाइफ अच्छा बनाओगे। आप बिजनेस चालू करेंगे ना, भले छोटा रहने दो, आपके अराउंड के 10 लोगों को आप लाइफ दोगे, उनका जिंदगी बनाओगे। बड़ा बिजनेस करोगे अंबानी जैसा, तो शायद लाखों को, करोड़ों को आप उनकी रोजी रोटी दोगे, लाखों का पगार दोगे, उनकी लाइफस्टाइल हाई कर दोगे, जैसे कि नारायण मूर्ति ने आईटी इंजीनियर्स का किया। एंड दैट इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अगर ये कर सकोगे ना, तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 फिनेंशियल बनने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप जैसे होनहार बच्चे बिजनेसमैन बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए। इंडिया की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 70% काफी चीजों के इंपोर्ट हमें चाइना से करने पड़ रहे हैं। चाइना की ताकत बढ़ रही है और चाइना आज हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है, और दूसरों के बिजनेस के लिए सपोर्ट करना है। वो बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे ये कहना है कि कुछ अंबानी बनने जरूरी है यार। कुछ लोगों ने खुद के बिजनेस, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना इतना जरूरी है। वो करोगे तो ही कंप्यूटर्स इंडिया में पैदा होंगे, मोबाइल से इंडिया में मेक इन इंडिया बनेंगे, और ये सब बनेगा ना, तो चाइना से इंपोर्ट बंद होके हम चाइना से भी बढ़िया बन पाएंगे। फिनेंशियली भी काफी सेक्टर में है ऑलरेडी हम लोग उनसे बढ़िया। ऑलरेडी वी आर द ग्रेट कंट्री, बट दिस यूथ शुड स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट। जो बेस्ट ऑफ द यूथ है ना, 90% का भागता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीएस। बिकम द लीडर्स। व्हाट आई से इज बिकम द लीडर्स। जस्ट अ रिक्वेस्ट, यू आर इन द बेस्ट फील्ड नाउ। ओनली थिंग व्हाट इज नीडेड इज ड्रीम बिग। छोटा छोटा ड्रीम नहीं करना है भाई। आ चुके हो ना विवेक, इस सेगमेंट में आ चुके हो ना आप, बीबीए बिजनेस में, तो आज से एक रिक्वेस्ट है, ड्रीम छोटा मत देखो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ड्रीम बड़ा देखना। एक दिन मैं स्टीव जॉब बनूंगा, एक दिन मैं टाटा बनूंगा, नारायण मूर्ति बनूंगा, एक दिन कंपनी में जॉब भी करूंगा ना, तो मैं सुंदर पिचाई नहीं सो इंदिरा नूई जैसी पोस्ट पे रहूंगा, और उस कंपनी के थ्रू लाखों की जिंदगी, करोड़ों की जिंदगी बनाऊंगा। एंड दिस शुड बी योर ड्रीम, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटीज। Only the thing needed is you have to develop yourself. कैसे डेवलप करना है, क्या करना है? Yeah, I will come down and I will teach you about that. So, what I need to become a business leader? क्या करना पड़ेगा भाई? बिजनेस लीडर बनना है तो अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे चार्ट्स में, सर बीबीए फ्रॉम मार्केटिंग, सर बीबीए फ्रॉम फिनांस, कौन सा करूं? बाद में भी काफी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या करूं। मैं बोलूंगा, when you have possibility to do everything, then why choose this or that? Why not this and that? बीबीए कर रहे हो ना, इसके बाद 2 साल मास्टर्स भी पॉसिबल है ना, तो फिर इन 3 सालों में बिजनेस A to Z सब कुछ सीख लो, 100% बिजनेस सीख लो। बिजनेस स्टार्टअप से लेके
फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, बिजनेस का एक्सपांशन कैसे, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, बिजनेस के लिए पैसे कहां से लाने हैं। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को पैसा लगता है। Today there are so many businesses just with a laptop. You can start it online and you can do miracles in the business world. Yeah, कहा Amazon खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, लोगों को लिस्ट कर रहा है और प्रोडक्ट्स बेच रहा है। One of the biggest company not having any own setups. कहा रिबॉक जैसी कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, दूसरों से प्रोडक्ट्स बनवा के लेते हैं, फिर रिबॉक का स्टैंपिंग होता है और मार्केट में आगे सेल होता है। यू नीड टू हैव सच काइंड ऑफ आइडियाज। बिजनेस स्टार्टअप करे कैसे, फाइनेंस कितना चाहिए, अगर कोई चीज में बड़े फाइनेंस चाहिए तो 10 लाख, 10 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ कैसे उठा सकते हैं मार्केट से, सीखना जरूरी है। मार्केटिंग कैसे करे, क्या बात है यार, छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, सब बच्चे बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन परचेस तो कोल्ड ड्रिंक ही करते हैं जब प्यास लगती है। इतना धंधा होता है, क्या जादू करके रखा है, मार्केटिंग का जादू है। आपको सीखना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा आपको कभी कि आप कोल्ड ड्रिंक बेचो और कुछ खराब चीजें लोगों को बेचो। आई विल से आप नींबू पानी बेचो, लेकिन उसका मार्केटिंग करना सीख लो। अच्छी चीजों का मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। नींबू पानी का मार्केटिंग करोगे तो लोग कम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो लोग कम दारू पिएंगे। अच्छी चीजों का मार्केटिंग नहीं होता है ना, तो अच्छी चीजें बढ़ती नहीं है लाइफ में। एचआर, स्टाफ सबसे बड़ी ताकत है। सिस्टम्स, ऑफिस में सिस्टम कैसे लगाए, नहीं तो क्या होता है पता है, कितने लोगों के बिजनेसमैन में एक चीज बैठी हुई है माइंड में, नहीं यार बिजनेस में छुट्टी नहीं ले सकते, नहीं यार बिजनेस में लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल उन लोगों ने सिस्टम नहीं लगाई। जो बंदा सिस्टम लगाता है ना बिजनेस में, वो 15 दिन बाहर भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ अंबानी अपने हर एक ब्रांच पे गल्ले पे आके नहीं बैठते, नहीं तो अंबानी ऑफिस में नहीं रहेंगे तो काम नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती है। उन्होंने क्या लगाई है, सिस्टम्स। हमें सिस्टम सीखनी पड़ेगी बिजनेस की, और उसके बाद एक बार सिस्टम लग जाती है ना कि नहीं अब लोगों को सिस्टम लगी है, वी कैन गो फॉर एक्सपांशन। फ्रेंचाइजीज खोलो, ब्रांचेस खोलो, वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस खोलो। आजकल चाय की दुकान की पुणे में एक एवलीटी करके, उसने भी खुद की ब्रांचेस खोल दी, फ्रेंचाइजी खोल दी। यस, अगर वहां का बर्गर इंडिया में आके मैगडी बन सकता है ना, उनकी रोटी रोटी रैप करके, रैप्स करके बेचे जा सकते हैं, तो टेल मी वहां से कुछ पिज्जा आते हैं इंडिया में। टेल मी वन थिंग यार, उस बर्गर से बढ़िया तो कभी भी मेरा वड़ा पाव है। हाँ, हर एक की चॉइस अलग, आई एम नॉट सेइंग, बट इफ यू कैन प्रेजेंट इट द बेस्ट वे, उसके बढ़िया बढ़िया स्टोर बनाओगे, यू विल गिव डिफरेंट वैरायटी ऑफ वड़ा पाव। तो वड़ा पाव के फ्रेंचाइजीज खोलो ना, यूएस में, यूके में, कनाडा में, जाओ ना, वहां पे आपके फ्रेंचाइजीज खोलने चाहिए। आप नहीं तो कौन पहुंचाएगा इंडिया को वहां। दुनिया में सबसे रिचेस्ट हमारा फूड है, क्या वैरायटी है यार, बिरयानी से लेके, अरे बाप रे, छोड़ो यार, क्या बताओ, नाम लेने लगूंगा ना तो घंटे लग जाएंगे। और इन सबको आपने पहुंचाना है दुनिया तक, आप नहीं पहुंचा रहे हो, आप बस दुनिया की टेस्ट करते बैठे हो। अपना कल्चर पहुंचाओ ना दुनिया में। वी आर द बेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, सबसे शांत लोग हैं हम पहुंचेंगे ना दुनिया भर, दुनिया पे रूल करने लगेंगे ना, तो दुनिया को हम हैप्पी बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे। सो ये स्किल्स ले लो बिजनेस के, बिजनेस स्टार्टअप से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम एक्सपांशंस। ये होने के बाद कौन सी स्किल जरूरी है, सिर्फ स्टडीज नहीं, सिर्फ स्टडीज से काम नहीं होता। स्टडीज के साथ आपको लगेगी टेक्नोलॉजी। टुडे आर द डेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल गेट्स ग्रेट हुए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऐप, फाइनेंस, मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर, एचआर के सॉफ्टवेयर, वहां से लेके ऑनलाइन बिजनेस कैसे करने हैं, रोबोट्स का यूज कैसे करना है, बिजनेस इंटेलिजेंस कैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे लाए, अच्छी अच्छी मशीनरीज कैसे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कैसे हम बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी, यू शुड बी मास्टर, यू शुड हायर पीपल अंडर यू हु आर ग्रेट इन टेक्नोलॉजी एंड यू बिकम देयर लीडर। यू शुड हैव प्रैक्टिकल स्किल्स, कैसे बिजनेस करना है। मार्केटिंग किताबों से सीख के नहीं होती है, यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल स्किल्स। रट्टा मार के फाइनेंस अब लोगों को पटा नहीं सकते हो कि मुझे 2000 करोड़ दे दो। 2000 करोड़ मांगने के लिए ना आप में प्रैक्टिकल स्किल्स लगते हैं, प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए किसी को कोई भी चीज बेचनी है ना, तो प्रैक्टिकली आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, स्टाफ को मैनेज करना है, सो प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हो जरूरी है। चौथी चीज जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनालिटी, योर ग्रूमिंग। Entrepreneurship is not only about studies and practical skills.
वो ना एक रुतबा है, रुतबा बंदे के चलने से लगता है कि साला ये एक दिन ना दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनेगा। आपकी पर्सनालिटी में वो रुतबा आना जरूरी है, वो रुतबा आना काफी जरूरी है। मुकुंद इज आस्किंग सर टेल अबाउट रिस्क। मुकुंद आई विल कम बैक। मैंने पहले बोला है रिस्क के बारे में, सो हम पर्सनली सेशन के बाद बात करेंगे। कम डाउन टू द थिंग। सो इन 6 सेक्टर में हमें स्टडी करना जरूरी है, लेकिन कौन सा स्टडी? स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। हाँ यार, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों को हैंडल कैसे करना है, उनको इंस्पायर कैसे करना है, वो निगेटिव हो जाते तो उनको पॉजिटिव कैसे करना है। लीडर तो ये सब कर सकता है। और एक लीडर अच्छा रहेगा ना तो क्या हो सकता है, और एक लीडर खराब हो तो क्या हो सकता है, ये सब आपने देखा है, सब चीजों में हर जगह आपने देखा है। सो लीडरशिप स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। और सबसे एंड में नेसेसरी है एटीट्यूड्स। आपके एटीट्यूड, दूध में पानी डाल के दूध बेचना और पैसे कमाना, ये गंदा एटीट्यूड है। और इस गंदे एटीट्यूड से ना धंधा आगे जाके मर जाता है। एटीट्यूड चाहिए, मैं भी कमाऊंगा और मेरे कस्टमर को भी बहुत अच्छी बेनिफिट्स दूंगा। जब ये एटीट्यूड है, जब डिवोशन का एटीट्यूड है, जब पॉजिटिविटी का एटीट्यूड है, अपने खुद के साथ मेरे एम्प्लॉयज की केयर लूंगा, मेरे समाज के लिए कुछ ना कुछ दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है तो जैसे आज बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी सोसाइटी को करोड़ों रुपए देके सोशल वर्क कर रहे, वैसे मैं भी करूंगा। जब ये जज्बा रहेगा ना, ये एटीट्यूड्स रहेगा ना, तो भाई सक्सेस कहाँ भाग के नहीं जाती है आपसे, कहाँ नहीं जाएगी भाग से। सो आपको क्या चाहिए लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके। बिजनेस स्टार्टअप, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर सिस्टम्स, एक्सपांशंस, इन 6 एरिया में पूरे स्टडीज। कौन से स्टडीज? स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सब चीजें जरूरी है। अच्छा, और सर इसके साथ ये चीजें सक्सेस के लिए हो गई अभी जो बताए, लेकिन लाइफ भी तो अच्छे से जीना जरूरी है। एक तो जिंदगी मिली है यार इंसान की, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स चाहिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, और अच्छा सा सेलिब्रेशन, हॉबीज, फन, मस्ती, म्यूजिक, इन सबका कॉम्बिनेशन चाहिए लाइफ। तभी तो आप सक्सेस प्लस लाइफ, ये दोनों चीजें हासिल कर सकोगे लाइफ में। एंड ये सबको कैसे मिलाना है सर? इतनी सारी चीजें चाहिए, आपने कितनी बोली? हाँ, मैंने बस इतनी बोली। 6 टाइप के स्किल्स बिजनेस के लिए। डोंट गो फॉर ओनली मार्केटिंग, सिर्फ सिर्फ मार्केटिंग करूंगा, क्यों? सब कर सकते हैं आप 3 साल में। आप में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सोचो मत। हम मास्टर सोचेंगे हम क्या करना है आगे जाके, बेस्ट करना है, क्या करना है, कोई सेगमेंट में करना है स्पेसिफिकली, लेकिन बीबीए में सब कुछ सीख लो, सब टेक्नोलॉजी स्टडीज से लेके सब थिंग, और लाइफ स्किल्स सीख लो। सर ये कैसे सीखेंगे? हाउ टू गेट ऑल ऑफ इट सर? लर्न, सीखो। पहले तो आपका कॉलेज वैसा होना चाहिए, आप जो बीबीए सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो सिंपल बीबीए नहीं होना चाहिए, वो स्मार्ट बीबीए होना चाहिए। वहां पे ये सब चीजें आपको लर्न करने को मिलनी चाहिए। हाँ, दुनिया में कोई भी चीज जब कोई सिखाता है ना, तभी आप सीखते हो, नहीं तो कोई नहीं सीखता। भाई नाक कैसे, सॉरी टू गिव द रॉन्ग एग्जांपल, बट ये नाक कैसे साफ करना है ना, ये भी मम्मी ने बचपन में सिखाया है, इसलिए हम सीखे हैं। सो हमें हर एक चीज सीखनी पड़ती है। नहीं पापा के बिजनेस पे बैठ के मैं सीखूंगा, पापा कैसे सिखा पाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमाइजेशन, हाँ वो उतना ही सिखा पाएंगे जो उनके पास है, वो बहुत प्यार से सिखाएंगे, नो डाउट। इज द बेस्ट टीचर ऑफ द लाइफ आवर पेरेंट्स। लेकिन हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टीचर से लर्न करना पड़ेगा। हर सचिन को अचरेकर की जरूरत पड़ती है, हर अर्जुन को द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ती है, तभी वो ग्रेट होते हैं। सो लर्निंग इज वेरी नेसेसरी। लर्निंग सिर्फ बुकिश नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस लेने हैं उसके बाद, और वो एक्सपीरियंस को रियल लाइफ में यूज करना है। यूज करोगे ना तभी तो वहां से ग्रेट बनोगे। यानी कैसे सीखने ये सब स्किल्स? पहले अच्छा कॉलेज ढूंढो। कैसा ढूंढेंगे? चलो बात करते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस, जहां पे प्रैक्टिस हो सके, जहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस मिल सके, और फिर जाके खुद के करियर में स्टार्ट करो ये सब चीजें यूज करने की। तो क्या सीखना है हमें? इन शॉर्ट, हमें सिर्फ बीबीए नहीं करना है, हमें करना है स्मार्ट बीबीए। क्या है जिसमें बीबीए की डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ ये सब चीजें, इंटरनेशनल स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एटीट्यूड्स और लाइफ स्किल, ये सभी मिलेंगे हमें। वेयर टू लर्न सर? स्मार्ट बीबीए।
सर ये स्मार्ट बीबीए कहाँ से लर्न करना है, हमें क्या करना है? ढेर सारे ऑप्शंस है। हार्डली इंडिया में 7-8 स्कूल रह गए, कॉलेजेस आई मीन टू से बीबीए के, जो ये सब चीजें सिखाते हैं प्रैक्टिकली। सो ढूंढो बेस्ट ऑफ द कॉलेज। अगर उस कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलती है या आप फीस की वजह से नहीं ले सकते हो, क्योंकि इनमें से मेजोरिटी कुछ है जिसकी फीस साल की 1.5-2 लाख के आसपास है, कुछ की फीस साल की 7-7, 8-8, 9-9 लाख है, क्योंकि इतना सब एक्सपोजर दे रहे हैं ना। तो अलग अलग कॉलेजेस है ऐसे, वहां से एक तो कर सकते हो आप बीबीए। नहीं तो अगर आप नहीं जा पाए वहां कहीं, सो डू वन थिंग, अपने बीबीए के साथ जो स्किल्स मैंने बोले वो इंटरनेट से, कई इंस्टीट्यूट्स पे आपको छोटे कोर्सेस मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस मिलते हैं, इन सब से कर पाओगे। भाई जिंदगी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। नहीं मेरे को टीचर अच्छा नहीं मिला इसलिए मैं लाइफ में ग्रेट नहीं हुआ, रो मत, बिल्कुल रो मत। अर्जुन को टीचर अच्छा मिला था, वो ग्रेट हुआ। एकलव्य को टीचर ने नहीं बोला था तो भी एकलव्य ग्रेट हुआ था। कुछ सीख के ट्राई करो। अगर गुरु मिलता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेस्ट कॉलेज मिलता है ना आपको, ये जो 7-8 कॉलेज एक आधे दूसरे में बता दूंगा एंड में आपको, अगर बेस्ट कॉलेज मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मिलता है ना तो कहीं से भी आप थोड़े थोड़े स्किल लेके, नहीं मामू से नकटा मामू अच्छा यार, सब कुछ नहीं ले सकते तो थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन सिर्फ बीबीए नहीं बनना है, स्मार्ट बीबीए बनना है, ताकि एक दिन आप भी बिजनेस लीडर बन जाओ, ताकि एक दिन आप भी अंबानी, जुकरबर्ग या बिल गेट्स बन जाओ। हाउ टू चूज अ बेस्ट कॉलेज, कैसे चूज करना है? लिमिटेशन से मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं, बट कॉलेज बेस्ट चुनते समय हम नॉर्मली क्या करते हैं, सब लोग किधर जा रहे हैं, किधर गर्दी है, कहाँ पे वेटिंग लिस्ट लगती है। अरे यार ऐसे चुनने के लिए क्या होटल है क्या कि गर्दी देख के घुस जाओ अंदर? नहीं यार, ये जिंदगी का सवाल है। इन 3 सालों के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है, पूरी लाइफ डिपेंड होती है आपकी। तो पहली चीज आपने देखना है सिलेबस, एक्सपोजर, क्या मिल रहा है मुझे उस कॉलेज में। सिलेबस सब कुछ है क्या, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है क्या? हाँ आप बताओ। चलो आप रेडी हो जाओ चैटिंग के लिए। आप क्या ढूंढोगे? सिलेबस, एक्सपोजर। आपको ऑलराउंड सिलेबस चाहिए या स्पेसिफिक? मार्केटिंग ही सीखना है सर, सिर्फ इतना ही पार्ट सीखना है सर, मुझे फाइनेंस ही सीखना है सर, मुझे सब कुछ बिजनेस नहीं सीखना है। ऑलराउंड चाहिए तो 1 लिखो, स्पेसिफिक चाहिए तो 2 आंसर लिखो आपके चैटिंग में। व्हाट यू थिंक, हाउ शुड बी योर कॉलेज? यू डिजाइन योर कॉलेज टुडे, और उस हिसाब से चूज करिएगा। और अगर किसी ने ऑलरेडी चूज की है तो एक्सेप्ट मैथ, हुसैन। हुसैन क्या बात है, पता है क्या यार, मैथ्स के बारे में काफी डर बैठा है लोगों के माइंड में। मैथ्स बहुत इजी है हुसैन। मैथ्स जिसको ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशंस, लॉगरिथम, वो सब चीजें जरूरी नहीं है रियल लाइफ में, वो सब बुकिश नॉलेज है, कहाँ यूज करते हैं। मेरे लिए बिजनेस जो कर रहा है ना, उसको मैथ्स कौन सा चाहिए? 2,000 रुपए का शर्ट लाओगे, 200 रुपए कमाने तो कितने को बेचोगे? कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 10,000 स्क्वायर फीट पे, तो एक एक फ्लैट कितने को बेचना है, तब जाके आपको एंड में 20 लाख रुपए कमाई होगी। ये कैलकुलेशन आना है मेरे लिए मैथ्स है। और आप ही बताओ हुसैन, वो इजी है ना मैथ्स? हुसैन आई वांट अ स्पेसिफिक कमेंट फ्रॉम यू। वो ट्रिग्नोमेट्री वाला मैथ्स छोड़ दो, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला मैथ्स जरूरी है बिजनेस में। तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फैकल्टी और टीचिंग देखो उस कॉलेज में जाने के बाद, कैसी है फैकल्टी, कैसा है टीचिंग। आप बोलो आपको क्या चाहिए, बुकिश टीचिंग चाहिए या प्रैक्टिकल टीचिंग चाहिए? राइट द आंसर। व्हाट यू विल सी इन योर कॉलेज? फैकल्टी टीचिंग, प्रैक्टिकल फील्ड से फैकल्टी हो या सिर्फ फैकल्टी को बुकिश नॉलेज ऐसे हो, कैसी चाहिए आपको फैकल्टी और कैसा चाहिए आपको टीचिंग? दैट इज द आंसर इज 1, प्रैक्टिकल। पर आप देखो, आप ऑलरेडी होशियार हो, लेकिन आप सोचते नहीं हो एडमिशन देते समय ना, काफी सारे लोग, इस कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा है ना, उसके पीछे, अबे नाम को क्या खाना है? नहीं इसकी बिल्डिंग बहुत भारी है ना। अबे क्या वो ईंटें देगा आपको, या जाते समय डिग्री के साथ थोड़ी कांच बीज देगा चिपका के आपके सर्टिफिकेट के ऊपर? नहीं यार, आप साथ में सिर्फ वहां से स्किल्स और लाइफ लेके आने वाले हो। यानी सबसे जो बड़ी चीज, नहीं नहीं वहां पे ग्राउंड जबरदस्त है यार। आज आप 500 रुपए में कहीं सब्सक्रिप्शन लगाओ देखो तो 10 जगह आपके ग्राउंड मिल जाते हैं टॉप के। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज सिलेबस, एक्सपोजर लाइफ का कितना मिल रहा है आपको। दूसरी चीज प्रैक्टिकल मिल रहा है। तीसरी चीज, मैं ये सीरियस सवाल पूछ रहा हूं,
तीसरा क्वेश्चन, कैसा कॉलेज आपको चाहिए? डेडिकेशन और डिसिप्लिन में, जहां पे सिर्फ मस्ती हो, फ्लर्टिंग हो, बाहर जाके ही आप सिगरेट पीते हुए बच्चे, पार्टीज करते हुए बच्चे देखो। मेजॉरिटी कॉलेज में यही हाल है आजकल। या जहां पे लर्निंग भी हो सर, थोड़ा साइड में मस्ती भी हो, दोनों जरूरी है ना सर? या ओनली लर्निंग 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 हो, कुछ नहीं, स्टडी के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं करना है? कौन सा वाला कॉलेज आप ढूंढोगे? ये द आंसर्स। डेडिकेशन, लर्निंग प्लस मस्ती। ट्रू, उसे दिस सेइंग ओनली लर्निंग, लेकिन उसे एक भी चीज है, हाँ, जिंदगी नहीं जियोगे तो क्या फायदा यार इंसान बनने का? एक ही तो जिंदगी दी है भगवान ने। वर्ल्ड टूर्स करनी चाहिए, ट्रेकिंग्स करनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। आई रियली बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसे लर्निंग प्लस मस्ती इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी। निश्चय इज सेइंग दैट, पटेल आर्यन इज सेइंग दैट, गौतम सोनी, भावेश मिनेकर, यस, लर्निंग प्लस मस्ती। नेक्स्ट वाला, ढेर सारे कॉलेज पैसे के लिए, फीस के लिए, जो बंदा आ रहा है उसको एडमिशन देते, ना उसका कल्चर देखते, ना उसकी हैबिट देखते। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट ना अपने दोस्तों से ज्यादा सीखते हैं, अपने टीचर से भी ज्यादा। अगर दोस्त फोर्स करने लगे ना, पी ले यार दारू, पी ले, कुछ नहीं होता। हाँ, तो फ्रंट, आवाज आ रही है? somebody has given me a message, sound please sir, are you getting my voice? Okay, are you getting my voice? You can't listen me? यस यस यस, यू आर गेटिंग इट ना पटेल, आपके इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया रहेगा। हाँ, फाइन, सो कम बैक। सिलेबस देखा, फैकल्टी देखी, डेडिकेशन देखा, कंपनी। सो टेल मी, बच्चों को सिलेक्ट करते समय कौन से भी बच्चे को एडमिशन देनी चाहिए? आपके साथ के बच्चे कल्चर्ड होने चाहिए, आपको लगता है? व्हाट डू यू थिंक? कंपनी की बात कर रहा हूं। जब कॉलेज ढूंढोगे ना, तो टीचर्स के साथ कंपनी भी ढूंढो। टीचर्स कैसे है, उसके साथ वहां के स्टूडेंट कैसे है, कौन से वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन दी जाती है। हाँ, टेल मी, कल्चर इंपॉर्टेंट है? यस, एवरीबडी इज सेइंग सर मुझे वही कंपनी, हाँ यार वैसे ही कॉलेज ढूंढो जहाँ पे कल्चर्ड बच्चे हैं। रैगिंग करने वाले बच्चे नहीं चाहिए, दारू पीने के लिए उकसाने वाले बच्चे नहीं चाहिए। मेजोरिटी 95% तो केयर लेनी जरूरी है आपकी। फिर लाइफ, उस कॉलेज में लाइफ है क्या? हाँ यार, लाइफ जरूरी है। फिर ये मस्ती वाला जो बोले थे ना आप, कि स्पोर्ट्स है क्या, म्यूजिक है क्या, ट्रेकिंग्स होते क्या, गैदरिंग होते क्या, लेकिन ये अच्छे वाले, मारा मारी वाले गैदरिंग नहीं, जिसमें झगड़े होते हैं वो वाले गैदरिंग नहीं, जिसमें पॉलिटिक्स होता है वो वाले म्यूजिक और स्पोर्ट्स शो नहीं। अच्छे वाले जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे सेलिब्रेशन है, वो सब वाले। और वो कॉलेज हमें लाइफ के लिए कितना सपोर्ट करेगा, ये 6 पैरामीटर। क्या वो मुझे प्लेसमेंट देगा? मेजोरिटी स्टूडेंट तो बीबीए के बाद प्लेसमेंट नहीं देखते हैं, दे गो फॉर मास्टर्स। लेकिन क्या वो कॉलेज फिर भी मुझे प्लेसमेंट में सपोर्ट करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए कैपेबल बना रहा है? क्या वो कॉलेज मुझे बिजनेस के लिए सपोर्ट दे रहा है, स्टार्टअप कैसे करो, बिजनेस में कुछ मिस्टेक होती है, एक कोच जरूरी है ना यार। आचरेकर सचिन को बीच में नहीं छोड़ते। साउंड इज म्यूटेड? नहीं यार, मेरा म्यूट नहीं है साउंड, इट्स नॉट म्यूटेड। वन कमेंट आई एम गेटिंग है, आपका सेटिंग चेक कर लो प्लीज, आई एम प्रॉपरली ऑन हेयर और सबको, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, प्लीज चेक इट आउट। तो सपोर्ट देखो, मास्टर के लिए सपोर्ट देते हो। व्हाट इज मास्टर? आगे एमबीए जाना है, इंटरनेशनल एमबीए वगैरह करनी है आपको, टॉप की, जहां पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए, तो उसकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके ले रहे क्या हमें, उसका बैकग्राउंड हमें क्रिएट करके ले रहे क्या? ये 6 चीजें कॉलेज ढूंढते समय देखनी है, ना कि सिर्फ नॉर्म क्या है, फेम क्या है, बिल्डिंग कैसी है। मेजोरिटी कॉलेज ना इंडिया में पॉलिटिशियंस के हाथ में है। और जो बंदा, मैं अच्छे और बुरे दोनों रहते हैं पॉलिटिशियंस, अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैनेजमेंट कैसी है, लेकिन मैनेजमेंट खराब रहेगी तो यार वो अच्छी चीजें नहीं दे सकती, आपको नहीं दे सकती। सो प्लीज ये 6 चीजें चेक करो और फिर कॉलेज आप चुनना। ओके, मैं जैसे आपको बोला था, मैं कॉलेज आपको लास्ट के 5-10 मिनट में सजेस्ट करता हूँ। हाँ, एंड अभी 20 मिनट बाकी है हमारे, सॉरी, या 20 मिनट बाकी है हमारे शेड्यूल में। सो लास्ट के 10-1 मिनट मैं आपको
कॉलेज के बारे में कुछ सजेशन देता हूँ और 10 मिनट 5 मिनट, फिर आप आपके एंड में मुझे क्वेश्चंस पूछ लेना। आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चंस आप कमेंट पे पूछ लेना एंड में। सो हाउ टू चूज अ बेस्ट कॉलेज, ये सब मैंने आपको बताया। सो एक कॉलेज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा के देता हूँ, एंड दैट इज अबाउट नाइट द इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज पुणे, जिसका मिशन ही यही है कि आपको इन बंदों के अंदर कहीं ना, ये ब्लैंक देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका फोटो चाहिए। और उन्हीं बच्चों के लिए जो ये ड्रीम देखने की ताकत रखते हैं, एक दिन इनके बीच मेरा भी फोटो यहाँ पे लग जाए, जो ये ब्लैंक है, नाइब द इंटरनेशनल कॉलेज। क्या बात है सर, ऐसी नाइब में अलग डिग्री मिल रही है, पुणे यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ आपको वो जो सभी स्किल बोला था ना मैं, वो स्किल्स, वो लाइफ, ये सब चीज दे रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट डेवलपमेंट करके ले रहे हैं स्टूडेंट का पूरा, लाइफ से लेके एटीट्यूड से लेके कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, 100-200 लोगों के सामने बोलने की एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं यार ये लोग। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, ये करवा के लेते हैं। और ये करवाने के लिए ना 200-200 कंप्यूटर्स की लैब है कॉलेज में, और हर एक चीज प्रैक्टिकली, टेक्नोलॉजिकली और पर्सनल अटेंशन देके करवाई जाती है। प्लेस वेयर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एवरी यूथ इज पॉसिबल। क्या क्या खासियत सर, जैसे कि सिलेबस, सभी ऑलराउंड सिलेबस जो हम ड्रीम में देख रहे हैं ना, कि ऐसा सिलेबस होना चाहिए ऑलराउंड, फ्रॉम स्टार्टअप टू एक्सपांशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, एवरीथिंग इज देयर। इतना है कि शायद एमबीए करने की जरूरत भी ना पड़े आपको। किसके लिए? सिर्फ स्किल के लिए, स्टडी के लिए करना है तो एमबीए मत करो, लेकिन आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना है, 10 ऑस्ट्रेलियंस के साथ, 10 साउथ अफ्रीकन के साथ जाके मिलना है, तो शायद इंटरनेशनल एमबीए को जाओ, वहां का एटमोस्फियर में आप ढेर सारी चीजें सीखोगे। नई की पहली स्पेशलिटी है यहाँ का सिलेबस और एक्सपोजर। दूसरा है यहाँ का फैकल्टी एंड टीचिंग, जो सभी प्रैक्टिकल है, जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल बिजनेस में एक्सपीरियंस लिया हुआ है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ओनली कॉलेज प्रोबेबली जहां पे हमें ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए आप में से जिनको 90% स्टडी करना है, जिनको अटेंडेंस देना है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आना है। यहाँ पे डेडिकेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, थोड़ा सा स्टडी करना है दिल लगा के, अटेंडेंस चाहिए। सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे तो 1-2 बार काउंसलिंग करेंगे, नहीं तो तीसरे बार रिस्ट्रिकेट होगा, क्योंकि कंपनी अच्छी जरूरी है ना। सभी बच्चे हम इंटरव्यू लेके कल्चर्ड ले लेते हैं एंड डिवोटेड इन स्टडीज। भाई स्टडी करना है, यस सर। मस्ती करनी है सिर्फ, नहीं सिर्फ मस्ती नहीं करनी है तो आ जाओ मेरे यहाँ पे। यहाँ पे मस्ती भी है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एट नाइट है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ट्रैक्स है। मैं भी आऊंगा आपके साथ ट्रेकिंग पे, आई लव दैट थिंग्स। गैदरिंग है, डांस करेंगे साथ में मिलके, यहाँ पे सब है। और सबसे खास, हम जिंदगी भर के लिए गुरु है, 100% प्लेसमेंट देंगे, लाइफ टाइम बिजनेस का सपोर्ट देंगे। बिजनेस स्टार्टअप करो, आपके कार्ड कैसे डिजाइन करो, या एडवर्टाइज में चेंजेस करो, ऐसे जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। और अगर आपको मास्टर्स को जाना है ना, तो भी सैटरडे संडे वी विल हैव सम टीचर्स, टुगेदर वी विल अपॉइंट देम हु विल टीच यू प्रिपरेशन फॉर दोस हाई लेवल एग्जाम्स इंटरनेशनली। तो कॉलेज जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और बना क्या कहते हैं ना रांचो में, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, तभी तो सक्सेस आपके पीछे आएगी। वैसे ही सक्सेस की गारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि हम काबिल बना रहे हैं पहले आपको। वी आर क्रिएटिंग द स्किल्स विद इन यू विच आर हेल्पफुल, और सक्सेस मिलेगी। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, नहीं तो मैनेजरियल जॉब्स में जाओ, नहीं तो फैमिली बिजनेस में जाओ। आपके बिजनेस को आप बहुत बड़ा करोगे, आपकी कंपनी को आप बहुत बड़ा करोगे, और सक्सेस 100% आपको मिलेगी जब काबिलियत है तो। और एक गोल्डन वे कहता हूँ, नाइफ से करो नहीं तो कहीं दूसरी जगह से करो, लेकिन अभी मैं आपको एक गोल्डन वे कहता हूँ, कहीं से भी करो। एक तो बीबीए के साथ ये सब स्किल्स ले लो, पॉसिबल है तो नाइफ में एडमिशन ले लो, स्मार्ट बीबीए कर लो। हाँ, दूसरे कोई ग्रेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहां से बीबीए कर लो। और साथ में बीबीए होने के बाद यूके, यूएस, कनाडा जाके इंटरनेशनल मास्टर्स करोगे ना, तो देखो क्या फायदे होंगे। एक तो सोसाइटी में पहले दिन से आपका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, यार ये बंदा फॉरेन जाके 2 साल का मास्टर्स करके आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे सब स्किल्स मिल रहे हैं, वहां जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगी, मैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर सकता हूँ, मैं अफ्रीका में कर सकता हूँ, मैं कनाडा में कर सकता हूँ, मैं कल जाके चाइना में भी घुस सकता हूँ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वहां पे सब कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे आपके।
सो गो फॉर दैट इंटरनेशनल मास्टर। फिर सर मैं इंटरनेशनल बीबीए को क्यों नहीं जाऊं अभी से? एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन, बीबीए इंडिया से कर लो, क्योंकि सब इंडिया के तौर तरीके 12th तक हमें कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं रहता है, सिर्फ थ्योरेटिकल। 3 साल प्रैक्टिकली रेडी हो जाओ वो इंटरनेशनल के लिए, ताकि आप फॉरेन में जाओगे ना कभी टॉप के कॉलेज में या इंडिया के टॉप के कॉलेजेस में, जैसे कि आईआईएम्स है वगैरह, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो। काफी बच्चों का एक्सपीरियंस है कि वहां पे जाते हैं, पहला प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, तो वहां पे एडजस्ट होने को ही आधा से ज्यादा टाइम निकल जाता है। सो बेटर डू बीबीए हियर एंड गो फॉर मास्टर्स इन दोस टॉप कॉलेजेस। सो दैट इज अ फीस भी नाइब की काफी कंफर्टेबल है। सो दिस इज नाइब। सो हम नाइब की फैसिलिटीज देखते हैं यहाँ पे ना, हॉस्टल से सब कुछ फैसिलिटीज है। सो विल सी दोस फैसिलिटीज। ये एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इस एटमॉस्फेयर में बच्चे कॉर्पोरेट के सुटेबल बन जाते हैं। यहाँ की लैब 200 कंप्यूटर के अलग अलग लैब है। इतनी इच्छा होती है कि यार यहाँ पे टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना चाहिए। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी मस्त बनाई हुई है that you feel like studying. I'm very proud कि मेरे स्टूडेंट 4-4 घंटे कॉलेज के बाद में बैठते हैं यहाँ आके। They go on reading, they go on discussion, तो सबका यूज हो रहा है। This is our dream wall, where one day we want to see the photographs of you. सेमिनार हॉल्स है, हॉस्टल्स है, आगे जाके बोर्ड रूम्स, बोर्ड के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए है। ये मेडिटेशन रूम है जहाँ पे आप मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ। We follow humanity, we do not follow any specific religion. हमारे लिए सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे बंदों ने ऑलरेडी कुछ कितने स्टूडेंट्स ने छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, अच्छे बिजनेस चालू किए हैं, उनको उसमें सक्सेस मिल रहा है। दिस इज द एटमॉस्फेयर, दीज आर द क्लासरूम्स। क्लासरूम भी 45 बच्चों के आसपास ही बच्चे हो, ज्यादा क्राउड नहीं करना है, कोई तो पर्सनल अटेंशन नहीं रखनी। वी आर गेटिंग हियर। और साथ में हम इसके साथ में ना हम और एक चीज देखते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं हमारे। लेट अस सी बच्चों के ओपिनियंस क्या है नाइब के बारे में। In this era of smart technology, I opted smart education, which was offered by NIPE. After joining NIPE, I experienced various development in me like scenario analysis, management skills, practical thinking, and stage daring, which are essential for an entrepreneur to become successful in his business. Thank you, NIPE, for providing me this opportunity to become successful in my life. Nilay Institute is itself a place of positivity. Every morning we have our universal prayer where Nilay spreads Nilay Vichardhara. Nilay spreads Nilay Vichardhara, which ignites a fire in me to do something great. I here in Factory learn in a research-based environment about demonetization, oil prices, how they are increasing, and foreign exchange rates, etc. I have learned world economics and now I know how to analyze world scenario to become a global expert in future. After joining NIPE, I got practical knowledge in various subjects like IT, income tax, GST, business calculation, which are useful in day-to-day life and business career also. At CATP,
We have done around 8 presentations in past 4 months. Also, there are various quizzes being held. Also, group discussions which take place on a regular basis. They have helped me in enhancing my analytical skills. Also, the business communication sessions are so interesting and they have helped me in grooming my personality, which will help me in becoming a CEO of a top-notch company. I have improved my English speaking skills, and because of this my confidence is increasing day by day. I am obliged as I chose this course because the teachers help and support a lot. Me being an international wushu player has to visit various places and have lots of support of them. Teachers at Nilaya are experienced commerce professionals. I am sure, due to their practical industrial knowledge, I will be a successful entrepreneur. Hello everyone. I have secured 87 percentile in my CET examination. But even though I was not very much happy with it, because I wanted to learn in such a college where I don't have to do the ratta mata, and I wanted to learn the new real-time business skills. So I took admission in the Naib Institute, where I don't have to do the ratta marka and I am getting a very good practical exposure of the world. I have also learned very good modern techniques, how to do a real-time business, tactics and methods. And so, I am very much happy to be here. It has been 6 to 7 months to me to get after getting the admission over here. And I am so... Okay, so we'll go back to our presentation, and in 2 minutes we will start with our question answer round. So your doubts and everything. Just before that, if you want to secure, if you want a great life, if you are having 60% plus marks, if you are a devoted student, then only seek for the admission at NIPE. Call this number 8888-212465. Entrance test will be there. Just pay some amount and secure the batch. By 10 July, we are starting our first batch. NIPE, they're looking at Corona. We are giving you a special option to decide your own pay time. थोड़े किश्तों में, EMI में payments pay कर दो, because last 3 months for many of them the businesses are not really working nice. So get set go in life, get the skills, set your dream high and go. Do not stop till you achieve your dream. आज अगर decide करोगे ना आप कि बहुत बड़ा बनना है, नाइब में आओ, नहीं तो नहीं आओ, कहीं से भी करो, लेकिन skills ले लो साथ में, एटीट्यूड्स बना लो, खुद के सपने बड़े बड़े देखो, और अगर ये डिसाइड करोगे ना, तभी एक दिन आएगा अब दुनिया में बहुत ग्रेट बिजनेसमैन बन पाओगे। आज के सेमिनार के बाद मुझे बस एक रिटर्न चाहिए आप लोगों से कि एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, और बस याद करोगे तो यार एक सर थे जिन्होंने वेबिनार लिया था, निलय सर, निलय एजुकेशन ग्रुप से, कि जिस वजह से आज मैं दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं। दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर मी। So now we will go for your questions and answers, but just ensure me you will have a very great success and you will make me, yourself and the nation proud on yourself. Be a great business leader. So any questions you have, I'm looking for those questions. Sir, how we prepare for entrance and interview of this college? Niranjan, entrance, the purpose is whether your calculations of basic interest, business, profit calculations, they are good. So you can study little bit interest calculation, percentage calculations, proportion calculations, something like that. Your attitude, aptitude will be tested, logical reasoning, and your English, whether you are a good writer, okay writer, and you can communicate good, so that you are able to understand the subjects which are taught at international level. So that is you have to take care about, Niranjan. If we do BBA from normal college, then what we need to do to get another skills? Patel, if you do BBA from normal college, so you have to find another institutes in your surrounding area जो ये छोटे-छोटे कोर्स दे सकेंगे, जैसे कि कोई HR का देगा, वहां पे आप प्रैक्टिकली मिल रहा है कि ये केयर ले लो। लेकिन एक बात है, नॉर्मली दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू गेट अराउंड पुणे, मुंबई, वो चीज करो, नहीं हो सकता है वो तो ऑनलाइन कुछ चीजें आपको मिलती है, बट यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन पटेल, खुद लर्निंग करने के लिए। वहां पे टीचर्स का सपोर्ट नहीं रहता है, बट कुछ ना मिलने से फिर ऑनलाइन पे ये सभी स्किल्स आप एक्वायर करते जाओ। 3 साल डेडिकेशन से करोगे ना, तो पटेल यू विल गेट बिकम वेरी ग्रेट आर्यन।
Suryakant asked, when is the entrance test for this college? Under Corona, all colleges nowadays are taking online entrance tests. So whenever you inquire and register yourself for test, within next 3-4 days, online test will be conducted for you using Zoom or Google. Okay. Aarti Jaiswal, sir, between BAF and BBA. BAF is specifically focusing on finance. BBA, whichever is best. BBA also, if you take a general BBA, the way I have described, where everything is taught about business. So I will think that BBA will help you if you choose all subjects and some college with practical skills and life skills. So do not choose BAF, go for BBA. Okay, Rajesh is asking, does science students can do it? Yes, Rajesh. Business is a different field. It is not only commerce. Anybody can come into business. यार एक 10वीं बंदा धीरूभाई अंबानी हो गया यार, तो एक साइंस स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता है? ढेर सारे साइंस स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। पिछले साल भी 17 एक स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है। 2 लोगों ने बी ड्रॉप आउट कर लिया सेकंड ईयर से, एंड दे हैव जॉइंड दिस कोर्स राजेश, एंड दे आर डूइंग मिरेकल्स। उनके पापा का बिजनेस है। इन बी दे हैव रियलाइज कि नहीं हो रहा है, हमें बिजनेस नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पे। ओके सर, प्लीज टेल मी, अकाउंट प्लस मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? नहीं, अकाउंट आपका अकाउंटेंट करेगा। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उनके ऊपर, कैसे आप कंट्रोल रखो और उनसे रिपोर्टिंग कैसे ले लो। सी, इन बिजनेस यू आर अ लीडर। आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन करने वाले दूसरे कोई रहेंगे। आपको लोगों से काम करवा के लेने हैं अथर्व चौधरी। मार्केटिंग भी आपको भी करना पड़ेगा यार, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में। अरे खुद को आप बेचने की कैपेसिटी रखोगे ना, सो तभी आप ग्रेड हो पाओगे। सर, बीकॉम इज बेस्ट और बीबीए? प्रथमेश, इट इज नॉट अबाउट डिग्री, व्हाट यू आर गेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बीबीए करोगे तो दैट इज रियली, बीबीए का सिलेबस इज एक्सटेंसिव देन बीकॉम, सो बीबीए इज एनी टाइम बेटर। बट व्हाट अल्टीमेटली यू आर टू सी इज इंग्रेडिएंट क्या मिल रहा है आपको। हिमांशु राजपूत, sir, which college is good for airport management? No, I don't have any knowledge in that segment of airport management. But again, as I told you, for masters, go for airport management, my dear. Rather than at this time, do your bachelor's into all business areas and go for masters in specialization. Great work and thanks for giving. Okay, in BBA, teach about, do they teach about markets? Yes. Suryakant, they teach everything: share markets, commodity markets, international WTO, and everything of that they are teaching about it. Patel Aryan, which is best specialization for BBA? Again, Patel, I am saying, don't do for specialization in BBA, go for specialization when you go for MBA. BBA, do from every segment. You must know business from A to Z, not only see I am learning. No. Where the college is located? Vivek, it is located in Pune at the heart of the city in Sadashivpet. 9-floored building, very in the heart of the Pune, surrounded by all the facilities. In Nashik, which college is best for BBS? Sorry, Atharva, go to different colleges and check out the 6 criteria I have given. Are they teaching good? Whether there are practical skills, what support they are giving. Talk with the teachers. Don't only talk with the marketing team. Talk with the teachers, see how they are teaching, and then join the college. So probably this was the last question. Anybody has any another question? In your group, I will forward some of the good videos, some inspirational videos in future, or whenever the next webinar is there, that link also I will forward. So tell your friends to come and join. Sir, how to prepare for interview for NIBE? As I said, prepare a little bit mathematics, interest, calculations, the ratio calculations, etc., etc. Prepare a little for English, and in interview, basically your devotion and culture will be seen. So for interview, you need not prepare. You need to prepare for entrance test. Can you recommend a few more colleges for BBA? Suryakant, see, recommending from the platform, there are no doubt 6-7 very good colleges whose fees are around 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh. And if you go on internet, you will find them also who are giving practical training. So that will be more great idea. And if you call me in personal, I will surely guide you about those parts also. In common, I cannot compare between the colleges. Atharva Chaudhary, okay sir, I want to build my own hospital. Arman, it is very much possible. One of our students has started with a
12 doctors and they are developing a hospital. They have already created the things, even though he is not a doctor. And if you become a businessman, that is very much possible. But with one intention, Arman, कि वहां पे जो पेशेंट आएगा ना, उसको काटना नहीं है, उसको मारना नहीं है पैसे के लिए, उसको जिंदगी देनी है, उसको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट देना है. पैसा इज नेसेसरी अरमान, पैसे के सिवा आपका हॉस्पिटल चलेगा नहीं, बट it should be profitable for you and for your patient also. Tell me about the fees. Niranjan, you call. We are giving very comfortable fees. You can call personally. Aarti Jaiswal is asking, sir, if we studied BBA from another normal college, is it that is better? No, no, Aarti. If you study from best of the colleges, the 7-8 colleges or 9, it is any time best. But if you can't get admission there, you should take admission in a normal college. But along with that, you should surely take all the practical skills that I have told through different sources. मिलते हैं द्रोणाचार्य तो बढ़िया है, नहीं मिलते हैं तो भी हमें नंबर 1 बनना है. That is for sure. Where is the hostel, sir? Vivek, the girls' hostel is here itself on 5th and 6th floor. And the boys' hostel is just nearby at a distance of somewhere around 300 meters from the college premises. Okay? Yes. So I hope everybody's questions are over. So love you loads. Thank you. Only one promise, please give me. आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, खुद की नहीं, खुद के साथ हजारों की जिंदगी भी आप बनाओगे. मेरे हिंदुस्तान को, मेरे इंडिया को आप दुनिया की फिनेंशियल पावर बनाओगे. Thank you very much for joining in the today's session. Love you and wish you all the best for your future life.